نیند کا تعلق اسٹمک کے ساتھ بہت گہرا ہے. مشقت والے کام نہیں ہے, زیادہ تر لوگ بیٹھنے والا کام کرتے ہیں. کھاؤ بھی پیو بھی لیکن اتنا جتنا آپ ڈائجسٹ کر سکو, پھر آپ فٹ رہو گے. 50 گرام اجوائن لے لیں, 50 گرام سونف لے لیں, تقریباً کھانے کے آدھے گھنٹے بعد استعمال کیا جائے. اب بہت سارے مسائل کا حل ہے. دانتوں کی انفیکشن ٹھیک ہو جائے گی, اسٹمک ٹھیک ہو جائے گا. طبی ماہرین معدے کو تمام بیماریوں کی جڑ قرار دیتے ہیں, لیکن آج کل ہمارا طرز زندگی ایسا ہو چکا ہے کہ گیس, تیزابیت, بد ہضمی کو ہم نے ایک معمول کی تکلیف سمجھ لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی جناب جینا سیکھ بھی لیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان علامات کو نظر انداز کرنا فیوچر میں جا کر آپ کے لیے السر اور معدے کے کینسر جیسی بڑی پیچیدگیوں کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہماری کون سی غذائیں اور عادات اس نظام کو تباہ کر رہی ہیں. اور سچ تو یہ ہے ناظرین کہ ہم وقتی آرام کے لیے ادویات کا استعمال تو کر لیتے ہیں لیکن بعد میں پچھتاتے بھی ہیں, کیونکہ کوئی بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. ذہنی تناؤ اور خوراک کے غلط انتخاب پر ہم غور ہی نہیں کرتے ہیں, جس کی وجہ سے معدے کی بیماریاں جو ہیں اب نوجوانوں میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں. اور آج ہم اسی موضوع پر بات بھی کریں گے کہ کیسے قدرتی طریقوں اور احتیاط سے معدے کو صحت مند بنایا جا سکتا ہے. تو گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں ماہر طب حکیم حافظ فرحان حنیف صاحب. بہت شکریہ آپ کے وقت کا حکیم صاحب. آج کل ہم دیکھتے ہیں 20 سال کی عمر میں ہی جو نوجوان ہیں وہ معدے کی شکایات لے کر بیٹھے ہوتے ہیں, اور اکثر و بیشتر پرابلم یہی ہے کہ جنک فوڈ کھا رہے ہیں, ایسی خوراک کھا رہے ہیں اور بعد میں کچھ ایک میڈیسن کھا کے سوچتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے. تو کیسے اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں ہم قدرتی طریقے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جی آپ نے یہ جو ٹاپک رکھا آج کل کے, بالکل یہ عین وقت کی ضرورت ہے کہ لوگ بڑی جلدی بوڑھا ہو رہے ہیں, اور اسٹمک جو ہے یہ تو 15-20 سال کی عمر میں ہی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کی بنیادی وجوہات جو ہیں اس میں سب سے پہلے فاسٹ فوڈ کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا, جنک فوڈ کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ نیند پوری نہیں ہو پا رہی, موبائل کا استعمال بہت زیادہ, یہ بھی اسٹمک کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. اور نیند کا تعلق اسٹمک کے ساتھ بہت گہرا ہے. اس کے بعد مشقت والے کام نہیں ہیں, زیادہ تر لوگ بیٹھنے والا کام کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جو لوگ, آپ اپنے قریب بھی دیکھیں, جو لوگ ورکنگ والا کام, مشقت والا کام کرتے ہیں, ان کی لائف بھی زیادہ لمبی ہوتی ہے اور وہ فٹ بھی زیادہ دیر تک رہتے ہیں. جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں کھا کے, وہ فٹ نہیں رہتے. تو اس لیے سب سے پہلی بات تو ہمیں اپنی غذا کے اندر تبدیلی لانی ہے. پھر اس کے ساتھ ایک اور بڑی غلطی کرتے ہیں ہم, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جہاں بھی مہمان جائیں تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں. اب آپ یہاں ابھی آپ نے کچھ کھایا, گھر سے 1 گھنٹے بعد, ہاں 1 گھنٹے بعد آپ کہیں گئے تو کھا لیں, پھر 1-2 گھنٹے بعد گئے تو پھر کھا لیا. یہاں پہ اسٹمک جو ہے اسی طرح اس کو سمجھ لیں کہ آپ کو کوئی کام کہا جائے کہ یہ پانی لا دیں, ابھی وہ پانی آپ لائے نہیں, آپ کو کہیں یہ بھی لے آئیں, یہ بھی لے آئیں. ایک وقت میں ہم اسٹمک سے اتنے کام لیتے ہیں تو وہ ایک بھی اچھے طریقے سے کر نہیں پاتا. تو جب بھی آپ کھانا کھا لیں تو کھانے کو ڈائجسٹ ہونے دیں. جب تک آپ کو اچھی طرح اور بھوک نہ لگے اتنی دیر تک کھانا نہ کھایا جائے. اور یہاں پہ اگر ہم حدیث کے اوپر عمل کریں تو حدیث میں تو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کا فرمان ہے کہ معدے کے 3 حصے کر لیے جائیں. ایک حصہ کھانا کھایا جائے, ایک حصہ پانی پیا جائے, اور ایک حصہ خالی چھوڑ دیا جائے. اگر یہاں پہ دیکھیں تو خالی کیوں چھوڑ دیا جائے کہ اس سے وہ ڈائجسٹو سسٹم آپ کا اچھا ہو جائے. پھر اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے, کلو واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو. یعنی کہ قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے, کھاؤ بھی پیو بھی لیکن اتنا جتنا آپ ڈائجسٹ کر سکو, پھر آپ فٹ رہو گے. اب آپ اگر زیادہ استعمال کر لیں تو اس سے کیا ہوتا ہے, اکثر آپ نے دیکھا ہے بہت سارے دنیا میں زیادہ لوگ وہ ہیں جو کھانا زیادہ کھانے کی وجہ سے مرتے ہیں, بھوک کی وجہ سے کم مرتے ہیں. اور کھانا جو ہے زیادہ کھانا انسان کی موت ہے. پیٹو اپنی قبر جو ہے اپنے دانتوں سے کھودتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم کھانا کیا کھاتے ہیں, اکثر اصل تو جملہ ہے کہ زندہ رہنے کے لیے کھانا کھایا جائے, لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے, کھانے کے لیے زندہ رہا جا رہا ہے. اچھا حکیم صاحب, اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹ پھول بھی جاتا ہے, لوگ پانی شاید غلط ٹائم پہ پی رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, غبارے کی طرح پیٹ پھولا ہوا ہے, بڑے انکمفرٹیبل ہوتے ہیں. یہ کیا پرابلم ہے؟ یہ بلاٹنگ ہوتی ہے یا یہ آپ کی فیٹ ہے, پیٹ نکلا ہوا, آپ اسے بلاٹنگ کہہ کے کور کر رہے ہوتے ہیں, یہ بھی ذرا بتا دیں. یہ کھانا اچھے طریقے سے ڈائجسٹ نہیں ہوتا. اچھا, ٹھیک ہے, اب ہم کھانا جب کھاتے ہیں ایک تو اچھی غذا نہیں لیتے, ٹھیک ہے, پھر ڈائجسٹ نہیں ہونے دیتے, پھر کھانا کھاتے ہی پانی پی لیتے ہیں. کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے. اب تھوڑی دیر پہلے پی لیں گے, آدھا گھنٹہ ٹھہر کے پی لیں گے, یہ سب سے بڑی غلطی. دوسری غلطی کیا ہے, اکثر اوقات ہم رات کو کھانا کھاتے ہی لیٹ جاتے ہیں.
अब खाना खा के थोड़ी सी चहल कदमी ज़रूरी है, जैसे हदीस में भी है कि खाना खा के थोड़ी सी चहल कदमी, खसूसन रात का खाना। यहाँ पे खाना खाने के बाद चहल कदमी की जाए तो इंसान को कभी ये ब्लोटिंग वाला मसला नहीं होगा। फिर खाना अच्छा खाया जाए, बासी ग़िज़ा ना खाई जाए, और ज़्यादा ऐसे खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी ना पिया जाए, तो फिर भी आप बच सकते हैं पेट के अफारे से। तो इसके लिए कोई नुस्खा भी बता देना। इसके लिए बड़ा सादा सा नुस्खा है। अगर ऐसा मसला हो तो उसके लिए हमारे पास बड़ी बेहतरीन चीज़ें हैं। एक 3 चीज़ें सिर्फ मैं आपको जिक्र करूंगा, जिसमें अजवाइन, ये आम पंसार स्टोर से मिल जाती है। उसके बाद दूसरी चीज़ है सौंफ, और तीसरी चीज़ है काली मिर्च। अब इसमें आपने 50 ग्राम अजवाइन ले लें, 50 ग्राम सौंफ ले लें, और इसमें 20 ग्राम काली मिर्च ले लें, और अगर ब्लड प्रेशर हाई नहीं रहता तो फिर ये 30 ग्राम काला नमक डाल लें। तो ये आपका इतना ज़बरदस्त नुस्खा तैयार हो गया है। चम्मच का चौथाई हिस्सा खाना खाने से तकरीबन खाने के आधे घंटे बाद इस्तेमाल किया जाए तो आपको ब्लोटिंग नहीं होगी, गैस नहीं रहेगी, तेज़ाबियत का इशू नहीं होगा, बहुत सारे मसाइल का हल है। वैसे तो आम रूटीन में सिर्फ और सिर्फ ये सादा नुस्खा 2 चीज़ें, अगर खाना खाने के बाद 2 चुटकी अजवाइन और 3 काली मिर्च चबा ली जाए तो स्टमक का इशू तो होगा ही नहीं। खास करके आपका पेट जितना मर्जी फूला हुआ, गैस का इखराज नहीं हो रहा, और जैसे ना हवा भर जाती है, तो ये फौरी तौर पे काम करता है, इससे तबीयत ठीक रहती है। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, जदीद साइंस अब ये मान रही है कि टेंशन आपको हो, कोई परेशानी हो तो आपके पेट में कोई गड़बड़ शुरू हो जाती है, पेट ख़राब हो जाता है। हिकमत का इस बारे में क्या नज़रिया है? क्या ज़हनी सुकून के बगैर मैदा ठीक नहीं हो सकता? ये बात ठीक है? ये बात बिल्कुल ठीक है। जब इंसान फिक्र में होता है, टेंशन परेशानी होती है, तो सफरा बढ़ता है, ठीक है, बाइल बढ़ता है, इससे गर्मी बढ़ती है। अब जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जिसे IBS कहा जाता है, आजकल सबसे ज़्यादा इशू आ रहा है आंतों में इन्फेक्शन और IBS क्या, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये है क्या? ये यही होता है कि जैसे ही बंदे को थोड़ी परेशानी लगा, कोई पेट में दर्द शुरू हो जाती है, तो इसमें भी आंतें जो है इन्फेक्शन में आ जाती हैं। तो इससे बचने के लिए बड़ा सादा सा नुस्खा है। अगर आपके घर में हल्दी हो तो हल्दी दूध में मिला के इस्तेमाल कर ली जाए, या हल्दी का कैप्सूल भर के इस्तेमाल कर लिए जाए, बड़ा कमाल का रिजल्ट है। अगर इसको साफ स्टमक के लिए भी साथ ऐड करना चाहे तो 50 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम उसमें सौंफ और 50 ग्राम मुलट्ठी, सारी चीज़ों का पाउडर करके अगर चम्मच का चौथाई हिस्सा सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल किया जाए तो आपको ये जो ज़हनी टेंशन वाला मसला है ये भी, क्योंकि आंतों की इन्फेक्शन ठीक हो जाएगी, स्टमक ठीक हो जाएगा, और साथ दिमाग के लिए बड़ा सादा सा कुलिया है। आप जब भी सजदा करें तो ज़्यादा देर तक सजदे में रहें तो आपका दिमाग ताकतवर हो जाएगा, क्योंकि इंसान को जो टेंशन परेशानी आती है ना, अब इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया है तो उसमें देखे कि इंसान के ऊपर वक़्त बदलता है। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा, दिन बदल बदल के आते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे। इसी तरह कुरान कहता है इन्ना माल उसरी युसरा, तंगियों के बाद आसानियाँ हैं। तो अक्सर औकात हम अपनी ख्वाहिशात को आगे रख के बीमार हो रहे होते हैं। तो गैस के लिए यहाँ बेहतरीन नुस्खा ये इस्तेमाल किया जाए तो इससे इस मसले से बचा जा सकता है। अच्छा हकीम साहब, ये बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खाते साथ ही ना बहुत बुरे बुरे बर्प आते हैं। अक्सर बैठे आप बुरा भी फील कर रहे होते हैं, कोई टेबल से आवाज़ें, रेस्टोरेंट में बैठे हों, तो इसका क्या हल है? बड़े लोग इसका बिल्कुल ऐसे ही, और ये जब इंसान के स्टमक के अंदर बरूदत, ठंडक पैदा हो जाती है तब, क्योंकि खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता, तो फिर उसे ये मसला बनता है। उसके लिए बड़ा कमाल का नुस्खा है। ये ज़ीरा हर घर में होता है, ये ज़ीरा, और उसके बाद ये 4 चीज़ें हैं। सिर्फ ज़ीरा लें 50 ग्राम, ठीक है, और 50 ग्राम ही ले लें ये काली मिर्च, ठीक, और उसके बाद 50 ग्राम ही अजवाइन, और 50 ग्राम ही काला नमक। अगर इसमें 50 ग्राम ये सौंफ भी ऐड कर ली जाए तो बेहतरीन नुस्खा है। अगर आधा चम्मच छोटा वाला ताज़ा पानी के साथ खाया जाए तो बेहतरीन रिजल्ट है। उसके बाद जवारिश कमूनी, ये आम बड़ी कंपनी की मिल जाती है, अगर वो इस्तेमाल की जाए आधा चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद तो फौरी तौर पे रिजल्ट मिल जाता है। और यही नुस्खा गैस के लिए भी है? नहीं, उसमें थोड़ा सा इसमें चेंजिंग आती है। ये गैस के लिए भी बेहतरीन अच्छा काम करता है, उसमें वजन का थोड़ा सा फर्क है। हकीम साहब, गुड़ के बारे में कहा जाता है कि खाना खाने के बाद थोड़ा सा अगर आप गुड़ खा लें तो सारा कुछ आपको हजम हो जाता है। इसके भी कुछ और फवाइद भी हमें बताएं, कि हमें तो एक ही पता है। अच्छा, इसमें गुड़ के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो आप देखिए, अभी भी मजदूर तबका
पहले तो लोग जो फसलों में गंदम काटते थे तो उस वक्त बाद में गुड़ ज़रूर खाते थे। आज भी बुजुर्ग जितने भी हैं खाना खाने के बाद गुड़ ज़रूर खाते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, हज़म हो जाता है। उसके बाद जो ऐसे लोग जो बाहर काम करते हैं मजदूरी का, जहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो वो इसको खाते हैं, इससे बलगम रेशा सारा जो है वो निकल जाता है। बलगम रेशे का ये इलाज है। उसके अलावा ये खांसी नहीं होने देता। बलगम रेशे के लिए बेहतरीन चीज़ है, खांसी नहीं होने देता। फिर उसके बाद इसका बेहतरीन फ़ायदा, अगर आपके जिस्म में दर्द हो रही है तो सिर्फ आप गुड़ जो है पानी में उबाल के पी लें तो इससे दर्द आपकी कम हो जाती है, क्योंकि इसका मिजाज गर्म है। हकीम साहब, उसके बाद लहसुन भी रखा हुआ है। हाँ जी, अगर लहसुन जो है इसका कहवा बना के तो उसमें गुड़ डाल के इस्तेमाल किया जाए तो ये भी गैस का बेहतरीन इलाज है। साथ ही साथ खांसी का बेहतरीन इलाज लहसुन और गुड़। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने ये देखा होगा, देसी घी और गुड़। ऐसे बच्चे जिनका जिस्म फरवा नहीं होता, मोटे नहीं होते, आए दिन गला ख़राब रहता है, खाना अच्छे तरीके से हजम नहीं होता, पेट फूला रहता है, बच्चे रोते ही रहते हैं हर टाइम, क्योंकि उनका पेट गैस होती है, गैस खारिज नहीं होती, बच्चे रोते हैं। तो उसके लिए बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। आपने 50 ग्राम गुड़ ले लें, ठीक है, उतना ही ये देसी घी और उतना ही गुड़ ले लें। दोनों चीज़ें लेके इसको आप फ्राई पैन में गरम करें। गरम करने के बाद आप ऊपर से जो देसी घी है वो उतार लें, गुड़ साइड पे कर दें। गुड़ का आप सूजी का हलवा बना के खा लें या किसी इस्तेमाल में ले आएं, लेकिन जो देसी घी ऊपर से उतारा है वो दवाई है। अब उसको इस्तेमाल करने का तरीका है, बच्चा हो बड़ा हो, जब ये दवाई खानी है 1 चम्मच इसकी डोज है सुबह शाम, लेकिन जब ये खानी है आधा घंटा पहले और बाद में बच्चे को फीड ना करवाया जाए। अगर बड़ा है तो उसे खाने के लिए कुछ ना दिया जाए, तो ये क्या करेगा, गैस का इखराज भी करेगा और साथ ही साथ जिस्म को फरबा भी करेगा। कॉन्स्टिपेशन का भी बेहतरीन इलाज, जो बच्चे कमज़ोर हैं, जिस्म नहीं फरबा हो रहा, उनके लिए भी बड़ा बेहतरीन है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपके वक्त का, और बहुत ही ज़बरदस्त हकीम साहब ने नुस्खे जो हैं वो बताए कि जितने भी आपके मसाइल हैं, और जनाब अभी के लिए इतने ही काफ़ी हैं, आप इन पर अमल करें। और कोई और मसला अगर कोई रह गया जो एड्रेस होने वाला है तो जनाब वो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। हम उसका भी हकीम साहब से इलाज पूछेंगे, और आप जो यूज़ करेंगे नुस्खे उसका आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं कि भाई ये नुस्खा जी बहुत मैजिकल निकला और हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। तो फिर हम हकीम साहब से जो भी आप फील करें इसके बारे में, जो भी फील करें।